Hi everybody. Today I have come with the topic of identification of chiral and achiral molecules and the assignation of R and S configuration. So you have to assign RS configuration, but first you have to identify whether it is a chiral or achiral molecule. अब chirality कैसे decide करना है? So this is a central carbon, यहाँ लिखा नहीं था, so I have written it down now, CH3. वैसे ये बॉन्ड पे कुछ नहीं था. व्हेन देयर इज नथिंग ऑन द बॉन्ड इट इज अंडरस्टूड इट इज CH3. जस्ट रिमेंबर दैट. बॉन्ड पे कुछ लिखा नहीं है तो क्या होगा? CH3. Okay, then you have to check to see whether it is chiral. You have to check whether all four groups attached to this carbon is different. अब ये तो मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ OH है, यहाँ Br है और यहाँ H है. When all four are different, we say the carbon is chiral and you can put an asterisk mark to show that it is a chiral carbon. Now, if it is chiral, you will have to assign R and S configuration. कैसे करने का? There are priority rules. Priority rules क्या बोलता है कि द कार्बन जो chiral है उस पर जो अटैच ग्रुप्स है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स है, एटम्स विच आर द एटम्स अटैच. देखो यहाँ OH है तो भी डायरेक्टली अटैच कौन सा है? ऑक्सीजन. यहाँ CH3 है पर डायरेक्टली अटैच कौन सा है? कार्बन. यहाँ Br है और यहाँ H है. इनको आप प्रायोरिटाइज ऑर्डर देना है, यानी 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स देना है डिपेंडिंग ऑन देयर एटॉमिक मास. जिसका सबसे हाईएस्ट मास होगा दैट विल हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी. अभी आपको पीरियोडिक टेबल से समझ में आएगा कैसे एटॉमिक मास है. तो ब्रोमीन इफ़ यू सी विल हैव द हाईएस्ट एटॉमिक मास एंड देयरफॉर इसका नंबर होगा 1. ओके, नेक्स्ट विल बी ऑक्सीजन, सो इसका नंबर होगा 2. Next is carbon, atomic mass 6, so its number will be 3. And last will be hydrogen, क्योंकि उसका मास तो 1 है. समझ में आ गया? So this is priority 1, priority 2, priority 3. तो आपको पहले क्या चेक करना है? Is it chiral? Is it attached to all 4 different groups? Yes. If it is chiral, then assign the priority order. Priority order देने के बाद भी आपको चेक करना है कि ये हाइड्रोजन जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसमें कोई भी लोएस्ट हाइड्रोजन ऐसा नहीं, whichever is having the lowest priority that should be on the dash. Is it on the dash? Yes. So if it is on the dash, then it creates no problem for us. So after this, after assigning this, after checking that H is on the dash, you draw an arrow connecting 1, 2 and 3. It is going in the anti-clockwise direction. If it is going in the anti-clockwise direction, we call it as S. If it is going in the clockwise direction, this you already saw in the first video of optical activity. If it is going in the clockwise direction, you call it as R. So now this is S configuration. Okay. Now let us go on to the next one. Next में this carbon, this is a central carbon. It is attached to H, it is attached to CH3, but यहाँ it is attached to bromine, 2 bromine. We know that if it has to be chiral, it should be attached to all 4 different. Since it is attached to 2 bromine, that means all 4 are not different. This is an achiral molecule. Okay? फिर इसका कोई RS configuration नहीं देखना है. Okay, let us go to the next one. This again is attached to OH, CH3, I and H. So all 4 different groups. So naturally this is chiral. Chiral है तो इसको एक asterisk mark दे दो. ठीक है. And now let us prioritize. सबसे highest atomic mass, iodine. Second, oxygen. Third, carbon. Because you are directly seeing only the atom which is attached to this carbon. एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन. तो आपने प्रायोरिटी कर लिया. प्रायोरिटी करने के बाद क्या देखना है? लोएस्ट प्रायोरिटी. इज इट ऑन द डैश? इज इट ऑन द डैश? येस. सो योर प्रॉब्लम इज सॉल्व. सो नाउ मूव, ड्रॉ एन एरो कनेक्टिंग 1 2 3 1 2 3. सो इट इज गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज एस. ठीक है. वी गो टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस शुड बी द chiral कार्बन, क्योंकि उस पर देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है. दैट मीन्स इट विल बी CH3. This nothing is shown, but it is understood. This is CH2. This is CH2. And this is CH3. So this is on one side it is CH3. Another side it is CH2, CH2, CH3. Here it is OH and चौथा वाला दिखाया नहीं है. When it is not shown, we know the dash is not shown. जब नहीं दिखाया ना, then it is H. सो आपको डैश 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 H लिखना है. Did you understand?
सिर्फ एक लाइन डाल के छोड़ दिया तो दैट इज मिथाइल, तो कुछ नहीं दिखाया लेकिन फोर्थ वैलेंसी है, देन यू विल शो इट एज H. So now this carbon is chiral because it is attached to 4 different groups. So when it is attached to 4 different groups, हम लोग convenience के लिए वहाँ पे asterisk mark डाल देते हैं to show that it is chiral. And now we have to prioritize. यहाँ देखो सब ऑक्सीजन है डायरेक्टली अटैच, सो दिस विल हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी. अब यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, सो नाउ यू हैव टू गो फॉर द सेकेंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. फर्स्ट पॉइंट तो दोनों का ही कार्बन है, सो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. फॉर कन्वीनियंस अदरवाइज आई विल राइट लाइक दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट अटैचमेंट कार्बन के साथ है और वो कार्बन पे जुड़ा है 3 हाइड्रोजन. सो नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट तो दोनों का ही कार्बन है, सो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. ये कार्बन पे अटैच क्या है, देखो ये कार्बन पे एक H और एक कार्बन अटैच्ड है, H एंड कार्बन. तो आप लिखोगे उसका फर्स्ट कार्बन लिखना है जिसका हायर मास है एंड देन H एंड H. तो अभी ये दोनों ग्रुप को कंपेयर करो, विच विल हैव हायर प्रायोरिटी. इसमें तीनों हाइड्रोजन है जबकि इसमें फर्स्ट हाइड्रोजन है और नेक्स्ट दोनों फर्स्ट कार्बन है और नेक्स्ट दोनों हाइड्रोजन. इसका फर्स्ट हाइड्रोजन, इसका फर्स्ट कार्बन. सो ऑब्वियसली दिस विल हैव अ हायर प्रायोरिटी. सो दिस इज गोइंग टू गेट द नंबर 2. देन दिस इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 4. तो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर दिया. येस 1 2 3 4. Is hydrogen which is the lowest priority, is it on the dash? Yes. So now you can draw an arrow connecting 1 2 and 3. Okay, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, clockwise. So this is R configuration. Okay, अब नेक्स्ट में जाते हैं. नेक्स्ट में दिस इज द सेंट्रल कार्बन. सी वेदर इट इज कायरल. यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ पे कार्बोक्सिल. सो ऑल 4 आर डिफरेंट, सो इट इज कायरल. ओके, दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल. एंड अब अभी हमको इसको प्रायोरिटाइज करना है. प्रायोरिटाइज करते वक्त फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक इज एटॉमिक मास, डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का यू नो इट इज़ 8, मास इज़ 8. कार्बन का 6 है, आई एम सॉरी, ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन का 16 है. कार्बन का 12 है, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि 13 या 14 है. कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, नाइट्रोजन इज 14. तो सबसे हाईएस्ट मास किसका हो गया, ऑक्सीजन, फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, देन नाइट्रोजन विथ 14 सेकेंड प्रायोरिटी. अब ये दोनों के बीच में, दोनों बिकॉज कार्बन है, यू विल हैव टू डिफ्रेंशिएट. ये कार्बन पे अटैच्ड है H और H. प्रॉब्लम ये कार्बन का है बिकॉज इट इज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप. अभी याद रखो कार्बोक्सिल में देर इज़ अ डबल बॉन्ड O एंड अ OH. ओके, डबल बॉन्ड O एंड OH. जब भी डबल बॉन्ड होगा ना, वो जो एटम है उसको 2 बार लिखना है. सो यू विल राइट O एंड देन दिस O. समझ में आया, डबल बॉन्ड में जो ऑक्सीजन है उसको 2 बार लिखना है एंड देन दिस O. सो इट बिकम्स 3 ऑक्सीजन. तो ये कार्बन पे अटैच्ड है O एंड O, जबकि ये कार्बन पे H एंड H. सो विच विल हैव अ हायर प्रायोरिटी, दिस विल हैव अ हायर प्रायोरिटी. सो दिस इज प्रायोरिटी 3. ओके, एंड दिस विल बी प्रायोरिटी 4. तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर डाल दिया. अभी आपको ये देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी इज इट ऑन द डैश, नहीं, बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी ये है और वे डैश पे नहीं है. ओके, सो अदरवाइज इफ आई कनेक्ट, नाउ लेट मी कनेक्ट 1 2 3 फर्स्ट. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, है ना, 1 2 3. सो आइडियली ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन बिकॉज द लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट ऑन द डैश, हम एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट लिखेंगे. ये होना चाहिए था S, बट वी आर गोइंग टू राइट इट एज R. सो जस्ट रिमेंबर, वेन एवर द लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट ऑन द डैश, जो भी आपको आंसर आ रहा है उसका उल्टा इज द करेक्ट कन्फिगरेशन. इज इट क्लियर?